Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajini Aurad. Now in last class we study arc, in that minor arc as well as major arc, right? So see here, this is circle and this is center O. When arc is formed, when the segment is passes through the circle, right? The arc is formed. राइट तो ए बी इज ए सेगमेंट तो टू कंडीशन से हम आर्क फॉर्म करते हैं या तो सेगमेंट एज वेल एज सेंट्रल एंगल तो सेंट्रल एंगल तो सी हियर दिस इज ऑन आर्क दिस इज minor arc and this is remaining is major arc. Right? So in that we study measurement of minor arc as well as measurement of major arc. Right? So measurement of minor arc is equal to the measurement of corresponding the central angle. तो सेंट्रल एंगल रहने के बाद राइट मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये माइनर आर्क है राइट दिस इज थीटा तो माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा सपोज थीटा इज 30 डिग्री देन माइनर आर्क द मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क इज 30 डिग्री तो मेजर आर्क कैसे माइनस करते हैं तो टोटल डिग्री ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री 360 डिग्री माइनस measurement of minor arc right so 360 minus measurement of minor arc is equal to major arc right in last class we studied the theorem the chord corresponding to congruent arc of a circle are congruent तो जो chord फॉर्म होते हैं टू chords और एक ही सर्कल में टू chords क्या रहेंगे congruent रहेंगे right so next theorem is see here corresponding arcs of corresponding arc of congruent chord of a circle or congruent circle तो एक ही सर्कल लो या तो आप टू सर्कल लेके भी बता सकते हैं congruent circle are congruent राइट तो फर्स्ट थ्योरम में हमने राइट कॉर्ड तो AC इज इक्वल टू डी हमने कॉन्ग्रुएंट बोल के बताया है अब करस्पॉन्डिंग आर्क हमें कॉन्ग्रुएंट है बोल के दिखाना है तो आपके बुक में प्रूफ नहीं दिए सो है राइट दे ओनली गिवन स्टेटमेंट्स राइट तो हम प्रूफ करके देखेंगे फर्स्ट फिगर निकालेंगे इसका राइट this is O center right and PQ is a chord and PMQ is a arc RS is a chord and RNS is a chord तो हमें प्रूफ क्या तो फर्स्ट थ्योरम में हमने chord PQ is congruent to chord RS करके दिखाया था और इसमें PMQ is congruent to RNS तो आर्क हमें congruent करके दिखाना है राइट तो गिवन तो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट निकालता हूं तो सी है व्हाट इज गिवन तो गिवन लिखना है आपको
given O is the center of a circle. This is the symbol of circle, right? Chord, तो chord congruent है बोल के उन्होंने ये बताया है हमें. PQ is congruent to chord RS. This is given. तो हमें प्रूव क्या करना है? To prove arc PMQ is congruent to arc RNS, राइट? तो इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है, राइट? तो आपके बुक में दे गिवन ओनली स्टेटमेंट, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कैसे प्रूफ करना है. तो सी है प्रूफ. ड्रा सेगमेंट OA, ड्रा सेगमेंट OP, OQ, OR एंड OS. तो ये सभी नहीं है, ओनली द गिवन, राइट? तो हमें यहां से सेंटर से हमें ड्रा करना है, राइट? तो लिखो आप इन ट्राइंगल POQ and in triangle ROS, राइट? तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें निकालना है. तो लिखो आप सेगमेंट OP is congruent to segment OP is congruent to, आप OR लिख सकते हैं या तो OS लिख सकते हैं. OS, राइट? सेगमेंट OQ is congruent to segment ORQ, radii of the same circle, right? And they are already given PQ is equal to L, PQ is equal to RS. तो given में दिए सो है, right? तो chord segment PQ is congruent to segment RS. यहाँ लिखना है तो given बोल के लिखो आप, right? Therefore from SSS, तो तीनों साइड इक्वल है. Therefore triangle POQ is congruent to triangle ROS, because यहाँ आपको लिखना है तो लिखो by SSS, test of congruency, right? तो triangle POQ is congruent to triangle ROS, right? Therefore, see here, these two triangles are equal, then this angle is also equal. Angle POQ is congruent to angle ROS. This is central angle, right? वो जो equal रहेगा, right? Next, measurement of arc. So measurement of arc PMQ is equal to angle POQ. क्यों? ये जो सेंट्रल एंगल है, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, राइट? तो माइनर आर्क जो है उसका डेफिनेशन क्या है, राइट? दिस इज माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल. तो सेंट्रल एंगल क्या है? O है, तो इसलिए POM, राइट? तो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ arc RNS is equal to angle ROS. Again, this is minor arc and this angle is central angle. तो यहाँ लिखना है तो लिखो because of by definition of minor arc. तो यहाँ देखो, राइट? तो इक्वल है, राइट? तो मेजरमेंट ऑफ आर्क PMQ
इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ROS, दोनों इक्वल है, therefore arc PMQ is congruent to arc ROS. This is the proof, right? तो आपके बुक में नहीं है, right? तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है, right? तो next we go to solved example. तो see here, next solved example number 1. The given ABC are any points on the circle with center O. Right? So ABC are any point on the circle with center O. तो first क्वेश्चन देखो इसमें, write the names of all arcs formed due to this point. तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो लिखो आप आंसर इसका, नेम ऑफ द आर्क्स आर, राइट? तो सी है, आर कितने फॉर्म होते हैं वो लिखना है, AB is a arc, BC is a arc, right? Again AC is a arc, right? BAC is a arc, ABC is a arc, CBA is a arc. तो लिखो आप arc AB, arc AC, arc ABC, arc ACB, right? ABC, AC, AB, BC भी आता है देखो आर्क, राइट? आर्क BC, राइट? तो नेक्स्ट आर्क इज BAC, राइट? BAC इज ए आर्क. तो ABC जो 3 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, उससे कितने हमें आर्क फॉर्म्ड होते हैं वो लिखना है, राइट? तो नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन. तो सी हियर सेकेंड क्वेश्चन, इफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC, measurement of arc, BC, they given only BC, measurement of arc BC is equal to 110 and measuration of arc AB, measuration of arc AB is equal to 125 degree. Then find measures of remaining arcs. तो रिमेनिंग आर्क का हमें मेजरमेंट करना है. तो BC is equal to the given 110 and AB is given 125 degree. तो टोटल कितना डिग्री रहता है सर्कल का? 360 डिग्री रहता है. तो लिखो आप मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC is equal to, this is ABC is equal to measurement of arc AB plus measurement of arc BC, right? तो
तो सी है मेजरमेंट ऑफ आर्क इज 125 एंड मेजरमेंट ऑफ आर्क इज 110, तो इन दोनों को मिला 235 डिग्री, राइट। तो ABC इज इक्वल टू 235, राइट। तो नेक्स्ट मेजरेशन ऑफ आर्क AC, राइट। तो AB आया, BC आया, AC आया, यहां रिमेनिंग है, राइट। ABC हो गया, AB हो गया और BC, राइट। अब हमें AC फाइंड आउट करना है, राइट। मेजरमेंट ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू, तो टोटल कितना रहता है 360 माइनस मेजरेशन ऑफ आर्क ABC, ACB, राइट। तो इसे माइनस करना है, राइट। मेजरेशन ऑफ आर्क AC, राइट। तो सी है 360 माइनस 235, राइट। तो आंसर कितना आता है 125, राइट। नेक्स्ट BAC भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो BAC एज वेल एज AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। मेजरेशन ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू 360 माइनस मेजरेशन ऑफ आर्क ACB, राइट। तो ACB और ABC इज इक्वल टू 235, राइट। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वी गो टू प्रैक्टिस सेट। तो सी इन द फिगर प्रैक्टिस सेट 3.3, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर पॉइंट्स, in figure the points G, D, E, F are concyclic, right, points, concyclic points of a circle, with center C, and angle ECF is equal to 70 degree, and measuration of arc, so measurement of arc DGF is equal to 200। तो ऐसे प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएंगे, राइट। तो फाइंड मेजरेशन ऑफ आर्क D and measuration of arc DEF, right? So see here in the figure the points G, D, E, F are concyclic points of a circle with center C and angle ECF is equal to 70 degree. Measuration of arc DGF is equal to 200 and find the measuration of arc DE and measuration of arc DEF. So see here, C is the center, right? So Z, D, E, F points are concentric points of a circle with center C, and ECF, the angle C is given 70 degree, right? And measuration of arc DGF, this arc is given, right? Measuration of arc DGF is given. तो इसे 200 दिया, तो find measuration of arc DE as well as measuration of arc DEF। तो इसे और इस बड़े आर्क को हमें फाइंड आउट करना है, DE as well as DEF को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन, मेजरेशन ऑफ आर्क, तो फर्स्ट इसे फाइंड आउट करेंगे, आर्क
EF is equal to, so see here EF and this is central angle, so central angle is equal to the minor arc. So definition of minor arc is the minor arc is equal to the corresponding central angle, right? तो central angle क्या है, C है, तो फर्स्ट एंगल लिखो ECF, ECF, right? तो measuration of arc EF is equal to EF is equal to 70 degree by definition of minor arc, right? तो EF हमें मिला है, right? तो हमें D as well as DEF फाइंड आउट करना है, right? तो सी है, तो टोटल सर्कल लेंगे हम फर्स्ट, मेजरेशन ऑफ आर्क DGF प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क EF राइट? तो DGF EF बचा कौन सा, DE, तो यहां लिखो मेजरेशन ऑफ आर्क DE, राइट? तो देखो आप DGF तो हाफ हो गया वो ऊपर का, यहां तक DGF यहां तक हो गया, उसके बाद EF यहां तक हो गया, रिमेनिंग पार्ट इज DE इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज मेजरेशन ऑफ a circle is equal to 360 degree, right? तो उसमें हमें पुट करो वैल्यू, दे ऑलरेडी गिवन मेजरेशन ऑफ आर्क DGF is equal to 200 degree, measuration of arc EF is equal to 70 degree, right? So measuration of arc DE is equal to DE is equal to 360 degree, right? So 270 plus measuration of arc DE is equal to 360 degree. So measuration of arc DE is equal to 360 minus 270, right? तो मेजरेशन ऑफ आर्क DE is equal to 90 डिग्री, तो माइनस करो आप, 90 डिग्री आता है, राइट? तो हमें DE मिला है, EF मिला है, एज वेल एज DGF मिला है, तो और एक कौन सा फाइंड आउट करना है हमें, मेजरेशन ऑफ आर्क DEF हमें फाइंड आउट करना है। तो DEF फाइंड आउट करना है तो हम कैसे लिखेंगे उसे, मेजरेशन ऑफ आर्क, तो देखो नेक्स्ट, मेजरेशन ऑफ आर्क DEF is equal to measuration of arc DE plus measuration of arc EF, राइट? हम लिखेंगे वैसा, राइट? हम उन दोनों का प्लस करो, राइट? मेजरेशन ऑफ आर्क DE is equal to 90 डिग्री प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क EF is equal to 70 डिग्री, तो ऐड करो 160 डिग्री आता है, राइट? तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो नेक्स्ट सी है थर्ड क्वेश्चन, राइट? AB and CD. In figure, right? Chord
AB is congruent to chord CD, तो AB और CD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, then prove that arc AC is congruent to arc BD, राइट। तो ये थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं, देखो राइट। थर्ड कॉर्ड इज इक्वल टू, मैंने अभी थर्ड थ्योरम पढ़ा है, देखो राइट। द कॉन्ग्रुएंट chords are equal, then the corresponding arcs are also congruent. So see here, proof और सॉल्यूशन बोल के लिखे तो भी चलेगा आपको, राइट। chord prove that arc AC is equal to BD, right? So see here, the given chord AB is congruent to chord CD, right? AB is equal to CD, therefore arc ACB, this arc ACB is congruent to arc CBD, राइट। तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, राइट। arc corresponding to congruent chord, arc ACB is equal to chord arc CBD, then measuration of arc ACB is congruent to measuration of arc CBD, right? Measuration of arc CBD. तो सी है मेजरेशन ऑफ, तो यहाँ देखो कॉर्ड ए बी है, राइट। तो ए बी कॉर्ड का राइट आर कौन सा होगा, ए सी बी होगा, राइट। तो ए बी इज ए कॉर्ड एंड ए सी बी इज ए आर एंड सी डी इज ए कॉर्ड एंड सी बी डी इज ए आर, राइट। तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल रहेंगे, राइट, थ्योरम से, राइट। आर्क इसलिए तो यहाँ लिखा है आर्क ACB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CBD, राइट। तो मेजरेशन ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू मेजरेशन ऑफ आर्क CBD, राइट। तो इसे हम मेजरेशन ऑफ आर्क, तो ACB को हम ऐसे लिखेंगे मेजरेशन ऑफ आर्क AC प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क CB, राइट। तो ACB को हम ऐसे लिखेंगे मेजरेशन ऑफ आर्क AC प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क BC, राइट। तो इसे हम इस कॉन्ग्रुएंट टू मेजरेशन ऑफ आर्क CBD को हम CB प्लस BD लिखेंगे, मेजरेशन ऑफ आर्क CB प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क CD, CB होने के बाद BD, राइट। तो ACB को हम AC प्लस CB लिखा है और CBD को हम CB प्लस BD लिखा है, राइट। तो यहाँ देखो मेजरेशन ऑफ CB है, दोनों जाते हैं, राइट। तो मेजरेशन ऑफ आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरेशन ऑफ आर्क BD, तो मेजरमेंट दोनों का सेम है आने के बाद आर्क AC is congruent to arc BD, right? So this is proof. See here, arc AC is congruent to arc BD. तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, देखो कॉर्ड AB गिवन है, कॉर्ड AB is congruent to CD है, राइट। तो कॉर्ड AB का जो आर्क है ACB है वो भी इक्वल रहेंगे और CD कॉर्ड का आर्क कौन सा है CBD है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। और
आर्क ACB को हम कैसे लिखेंगे, आर्क AC प्लस आर्क CB, और आर्क CBD को हम कैसे लिखेंगे, आर्क CB प्लस आर्क BD। तो उसे सॉल्व करो आप, ऑटोमेटिकली आर्क AC इज कॉम्प्लीमेंट टू आर्क BD आता है। रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।